So last time we were studying the development process. We read this dialogue between manager and this sage, and we were trying to understand what is development. And then we studied this topic, this model, be, know, and do. And then we talked about that this is how we actually develop. And then we talked about the know part, the do part, and the be part. And then we talked about the inform and transforming part, the twin model or the twin moment of development. And then we were discussing this thing, that process model of development. Readiness, experience, and reflection. We talked about readiness, that how much you are ready to develop yourself or ready to learn new things or do new things. Readiness. And we talked about this example that different people go and watch the same movie, but all of them have different perceptions and idea about that movie or about the same topic. Then we were talking about the experience, that experiences, they happen to everybody. They come in all shape and all sizes. Not all experiences are rich for development potential. They can come from your formal place or from informal place. They can be public, they can be private, they can be planned, they can be unplanned, all sorts of experiences. But all of them have the development potential. All of them can develop you. Some have less developmental opportunities, some have more developmental opportunities. Now, I think the mistake that we try to make is, first of all, we try and separate our professional and personal life. And we look for development only from this part of life. The problem is we should also look from this part of the life as a development opportunity. It's not always going to be your school or your office or your training or your formal setting which is going to teach you. It's going to be everything that is teaching you. Suppose, even if you're traveling and somebody is sitting next to you and you ask that person a question, a simple question, कि वो कहाँ से है, क्या करता है, and you just listen to him for like 10-15 minutes, because otherwise you will be wasting your time. I'm sure you'll be able to learn something new. So all of your life is full of those experiences. Work and home both can teach and develop you. So do not separate your life, work life, from professional life in terms of developing yourself. Then they come from your academic life, yes, like we are talking. They also come from your social experiences. Just talking to other people, just listening to the other people, just looking at other people. For example, if they're fighting or if they're talking to each other or something, you can learn from them. Because at the same time, आपको होलिस्टिक एजुकेशन लेनी चाहिए और उसको बाद में इंटीग्रेट करना चाहिए. नाउ डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ह्यूमन कैपिटल डेवलप किया है, आपका सोशल कैपिटल भी डेवलप होना चाहिए. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं.
Human capital is when you are learning something new, which is fine. आप चीजें सीखते रहते हो, एंड आप अपने आप को क्लेम करते हो कि आपके पास बहुत नॉलेज है। जैसे आप ये क्लेम करते हो पैसे को कि मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, पैसा है, जिसको यूज करके आई कैन मेक सम मोर मनी एंड आई कैन ग्रो एंड एवरीथिंग। इसी तरह जो आपका नॉलेज होता है, दैट इज योर ह्यूमन कैपिटल। द स्किल्स यू हैव इज योर ह्यूमन कैपिटल। द कॉम्पिटेंसीज यू हैव इज योर ह्यूमन कैपिटल। बट this is not enough. You also need to develop social capital. एकेडमिक्स से आपको ह्यूमन कैपिटल आता है, सोशल एक्सपीरियंसेस से आपको सोशल कैपिटल आ सकता है, बट दोनों आ रहे होते हैं। सोशल कैपिटल का मतलब सिंपल ये है, इफ यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, यू हैव सोशल कैपिटल। अदर देन योर पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट है, उसको आप कोई काम कहते हैं और वो कर देता है, दैट इज सोशल कैपिटल, बट दैट इज derived from the position that you have, कि आप बॉस हैं, उसने काम करना ही करना है। बट इमेजिन कई दफा आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जहां आप किसी बंदे को काम कहते हैं और कोई सिफारिश करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो सिफारिश सुनने वाला बंदा कहता है इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, इस बंदे की सिफारिश को मैं इनकार नहीं कर सकता, विच मीन्स जिस बंदे ने सिफारिश की है उसके पास सोशल कैपिटल है, बिकॉज वो इस बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाउ मेनी पीपल नो यू, हाउ मेनी पीपल लिसन टू यू, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली रिस्पेक्ट्स यू, एंड ऑल दोज थिंग्स, सोशल कैपिटल। तो आपको ये दोनों गेन करने हैं। देन लुक फॉर एक्सपीरियंसेस विद इन द क्लास, outside the class. It's not only the class in which you will be learning things. It can always be outside the class. Now, the main idea is that try and be open about experiences. Never ever think that any experience is a bad experience. Never ever think that any job is a meaningless job. All job, everything that you've done in life, everything that you get to done in life, everything that you are going to do in life will always help you in developing yourself. But the idea is you need to be open to all experiences of life. ये जो holistic approach है all experience वाली, ये बड़ी important है। If you think you cannot learn anything from your subordinate, you're wrong. If you think you cannot learn anything from your family members, you are wrong. So you need to be open to all sorts of ideas, and they can come from anywhere. But how many experience should we try in social life? How many should we try in academic life? How many should we try within the class, outside the class? The idea is to keep a balance. Do not only give value to one type of experiences, and do not only depend on one type of experiences. So every experience has the capacity and the potential to teach you. ये हमने लास्ट टाइम बात की, इसको थोड़ा सा हम मजीद समझते हैं। इस पे हमें एक दो लोगों ने कहा भी। नाउ एक्सपीरियंस के साथ जब लर्निंग होती है तो देयर हैज टू बी अ मैच ऑफ चैलेंज
and support. अगर आप अपने आप को कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक श्योर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन चैलेंज एंड सपोर्ट. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, not enough challenge and too much support will make us stagnated, satisfied, and in a state of completion. हम कहते हैं हमें इतने फायदे मिल रहे हैं, मसला कोई है नहीं, चैलेंज नहीं है और सपोर्ट बहुत ज्यादा है. This will make us all these things. State of completion means you are done with development. चैलेंज ही नहीं है आपको और सपोर्ट हर तरह की है. But on the other hand, too much challenge and not enough support will make us stressed out, closed, rigid, frustrated, and most of the times, if there is too much challenge and not enough support, most people quit. So you need to be very clear कि आपको कितना बैलेंस रखना है. नाउ समझने के लिए जरा थोड़ा सा सपोर्ट एंड चैलेंज को समझने के लिए ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है. द राइट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. ये सारे इमेजिन कर सकते हैं, जब बच्चा वॉक करना सीख रहा होता है तो किस तरीके से आप चैलेंज एंड सपोर्ट को देख सकते हो उसकी डेवलपमेंट में. पेरेंट्स क्या करते हैं, प्लीज इसको क्लैरिटी ना हुई तो मुझे समझना, जरा क्वेश्चन करना, विल डिस्कस अबाउट. बच्चा जब पहली दफा वॉक करने लगता है या थोड़ी सी वॉक कर लेता है और अभी सीख रहा होता है, तो हम उसको चैलेंज भी करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं. अगर आपका बच्चा वॉक करके आपके पास आ रहा है, आपने देखा कि आप कभी भी बिल्कुल उसके सामने खड़े हुए, इधर ही खड़े हो जाओ, क्योंकि इधर ही खड़े हो जाएंगे तो देर इज टू मच सपोर्ट एंड नो चैलेंज, बिकॉज उसने आप तक पहुंचना है तो फिर उसने वॉक करना सीखना है. यहां उसको ना चैलेंज है, उसको पता है मैं गिरूंगा भी ना, कोई कदम भी नहीं उठाऊंगा, गिरूंगा भी मैं इसके ऊपर गिर जाऊंगा, ये मुझे संभाल लेगा. उसको कदम उठाने की जरूरत नहीं है, वो गिर जाएगा आराम से. यहां क्या हो रहा है, नॉट इनफ चैलेंज एंड टू मच सपोर्ट हो गई है. ऑन द अदर हैंड, अगर बच्चा यहां है और आप इधर खड़े हुए हैं और बच्चा आपको देख सकता है कि आप बहुत दूर हैं इसकी कैपेसिटी से, बहुत ज्यादा दूर हैं, तो प्रॉब्लम क्या हुई, टू मच चैलेंज एंड नॉट इनफ सपोर्ट. बच्चा चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं इधर तक नहीं पहुंच सकता. बट इफ वी हैव द राइट बैलेंस, दो कदम पे हम खड़े हो जाएं, नाउ ही नोस कि अगर मैं गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, देयर इज नोबडी टू सपोर्ट मी. बट यस, if I can walk for one or two steps, there is somebody to take care of me. But for that, I need to take one or two steps. So,
यहां क्या इशू आ गया? टू मच सपोर्ट, नॉट इनफ चैलेंज. Too much challenge, not enough support. This is the right balance that you can maintain. जी, इस पे बताएं कि क्लैरिटी थोड़ी सी हुई. तो ये तो हर Yes. किसी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है। जी, ये तो हर किसी की सोच के लिहाज से मुख्तलिफ होगा ना। सोच के लिहाज से मतलब किस पेरेंट्स की तरफ से आप कह रहे हो या बच्चे की तरफ से कह रहे हो या किस तरह कह रहे हो? अगर पेरेंट्स और इसके सिनेरियो से निकाल के किसी जॉब सिनेरियो में लेते हैं उस लिहाज से, जी जी, हाँ. तो अगर मुझे उसको ज्यादा भगाना है तो फिर तो मैं इतनी ज्यादा सपोर्ट तो नहीं दे सकते ना। देखो, डिपेंड करता है ना. यही बच्चा आपका, यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी सपोर्ट भी कम होती जाएगी इस स्पेसिफिक टास्क के लिए, और इसका चैलेंज भी बढ़ता जाएगा. वो तो ऑब्वियसली टास्क टू टास्क, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा. बट आपको सही बैलेंस इसमें रखना है. आप अपने अपनी डेवलपमेंट का जो प्लान है उसमें मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोच लेते हो कि मैंने आज ही सारा ही काम दुनिया का कर देना है, तो यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और अकेले ही करना है. या दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा कोई काम करूंगा, आप सारा दिन रिलैक्स बैठे रहेंगे. सो यू नीड टू हैव इनफ चैलेंज एंड इनफ सपोर्ट, ताकि दोनों चीजें आपकी बैलेंस में रहें और डेवलप होती रहें. लेकिन उसके लिए ये अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो आप भी अभी पूछ रहे हो या शायद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. इट इज नॉट कि आप सीधा सीधा जो है चैलेंज और सपोर्ट के उसी बैलेंस पे रखें. आपको एक्चुअली चैलेंज एंड सपोर्ट को बैलेंस में रखते हुए अपना स्ट्रेच जोन को भी देखना है. मसलन, it is a healthy median between the comfort zone and the panic zone. Things you want to do and things you do not want to do. इसको आपने further stretch करते रहना है. Maybe at one point of time, when you're not very much developed, a few things are very difficult. But the same things, you don't even care. You don't even realize that you're doing those things. वॉकिंग का ये है, स्पीकिंग में ये होता है, राइटिंग में ये होता है, एंड एनी अदर थिंग. बट व्हाट यू नीड टू डू इज constantly seeking one's stretch zone is the essence of adopting a truly developmental perspective in life. Constantly. देखो, आज अगर आपने कोई भी ऐसी चीज है जो टास्क किया है, 5 आपका लेवल है टास्क का, अगर आप इसको ये चाहोगे कि मैं नेक्स्ट डे 500 पे पहुंच जाऊं, तो दिस इज टू मच चैलेंज, नॉट इनफ सपोर्ट. ये ठीक टारगेट्स नहीं है. बट अगर आपने ये रखा हुआ था कि 10 साल बाद आपने 500 की उस पे पहुंचना है, नाउ दिस माइट बी पॉसिबल. हो सकता है कुछ लोग ये 10 साल में करें, कुछ 9 में, कुछ 8 में, कुछ 5 में,
but it is going to take you some time. And ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ तक 5 तक चलते रहें, आपका 5 ही रहे डेवलपमेंट प्लान, एंड अगेन आप कहें 10 साल बाद विद इन 1 मिनट 1 डे हम 500 पे पहुंचे. So what you can do is, this is your stretch zone. इसको थोड़ा सा फर्क करते हैं. This much in some task, and this is your goal. Obviously, expanding it to this much within no time will be very difficult, but what you can do is you can continuously try and increase. Continuously try and increase. Stretch zone is increasing, at the same time you are being a developed person. And then maybe you reach to this situation. First of all, it is going to take time, but it is a continuous process. And when you are going to compare yourself from here to here, then you can see the real difference. But the difference did not come in 1 day or 1 year or 1 month. It took a lot of time. Depending upon what kind of task you're doing, it took a lot of time. But this is not the end. Again, you will continuously be developing yourself. Because ये infinity है. You cannot say कि आपने दुनिया का सबसे developed person है आप. There's a plenty of room. So challenge yourself, give yourself support, but constantly increase your stretch zone. And अपनी comfort zone से निकलेंगे तभी development plan जो है वो execute हो सकेगा. Another very सर एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जी. गाइड कीजिएगा कि इस स्लाइड में सर पीछे वाली स्लाइड में जाकर आप जाएंगे. जी. तो एचआर का जो रोल है ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज एंड सपोर्ट में वो क्या है, और एम्प्लॉयज के लिए चैलेंज एंड सपोर्ट में एचआर का क्या फंक्शन है कि वो इस स्लाइड को मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सके. ओके. अब एचआर का ये इसमें रोल हो सकता है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज तो दें. अब फॉर एग्जांपल एक बंदा एक ट्रेनिंग करके आया है, ट्रेनिंग वो ये करके आया है, चलें इस तरह लेते हैं इसको. एक बंदा है और आप चाह रहे हो कि उससे आप अपने पर्सनल्स की ट्रेनिंग कराओ. ये 3 लोगों की आपने ट्रेनिंग करानी है उससे. उस बंदे ने इन 3 की ट्रेनिंग करनी है. राइट सर. ठीक है. ये है कि आप उसको कह दो कि इन तीनों को ट्रेनिंग दिलवा दो और महीने के अंदर अंदर ये तीनों फुली ट्रेंड हो जाएं विदाउट एनी सपोर्ट. अब ये क्या मसला हुआ, ये आपने उसको टू मच चैलेंज दे दिया. उस बंदे को पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, उसको खुद उन चीजों का सही आइडिया नहीं है, एंड ऑल दीज थिंग्स. अगर आप इसको चैलेंज दे रहे हैं, इन तीनों को ट्रेन कर दो, इसको आप ये कहते हैं कि तुम पहले जाओ, हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं, तुम ट्रेनिंग लेके आओ, तुम ट्रेनिंग खुद लेके आओ, सीखो, एंड वापस आके इन तीनों को ट्रेन कर दो. अब आप उसको सपोर्ट यहां से कर रहे हैं, चैलेंज यहां से कर रहे हैं. पहले आप क्या कर रहे थे, सपोर्ट कहीं से भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ चैलेंज कर रहे थे. तो इस एम्प्लॉय को फैसिलिटेट कर किया है आपने थोड़ा बहुत. आप खुद सोचो, कई दफा ऐसा टाइम नहीं आता, बंदा कहता है यार क्या करूं, ये काम तो नहीं हो सकता अनलेस कि मुझे फलानी चीज की सपोर्ट मिले, फलानी चीज की सपोर्ट मिले. तो वो आप ऐसे कॉर्नर पे चले जाते हो जहां चैलेंज बहुत ज्यादा हो जाता है और सपोर्ट कम हो जाती है. सर एचआर का जो सक्सेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग में जो रोल है, जी जी, उसमें समहाउ बेसिकली चैलेंज एंड सपोर्ट का एलिमेंट आता है. यस
यस यस यस यस, सक्सेशन प्लानिंग आगे हमने डेवलपमेंट प्लान जब एचआर का पढ़ना है तो उसमें भी यही आएगा। अगर एक बंदा 10 बंदों को संभाल रहा है फिलहाल, और आप उसको चाह रहे हैं कि वो 100 बंदों की टीम को संभाले, आप उसको क्या करते हो, आप उसको पहले 20 लोग की टीम दे के देखते हो कि क्या ये संभाल सकता है कि नहीं। तो जैसे ही आप उसको वो 20 लोगों की टीम देते हो, आप उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करते हो। मे बी आप उसको ऑफिस डिफरेंट दे देते हो, मे बी आप उसको फैसिलिटीज डिफरेंट देते हो, मे बी आप उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेशन में एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो। एंड वंस ही सक्सेसफुल देयर लुकिंग आफ्टर 20 पीपल, फिर आप सोच सकते हैं कि आप उसको 100 लोगों की टीम दे सकते हैं। और 100 लोगों की टीम दे दें लेकिन साथ सपोर्ट करने वाला कोई ना हो, वैसे ही फैसिलिटेट ना कर रहे हो आप लोगों को, तो फिर वो काम एक्चुअली नहीं कर सकेगा, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकेगा। तो इसका बैलेंस एक्चुअली होना चाहिए, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, टू मच सपोर्ट ना करें, एंड टू मच चैलेंज भी ना करें विदाउट द सपोर्ट। Right, sir. Thank you. And I think one of the very, very important things is reflection. Somehow ये सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है पर्सनल डेवलपमेंट में या किसी की भी डेवलपमेंट में, कि उसको ये बात पता ही नहीं होती कि ये भी कोई चीज होती है, ये भी कॉन्शियसली करनी होती है। Developing ultimately boils down to what a person does with his or her opportunities and abilities. रिफ्लेक्शन का हम पढ़ते हैं, बट लुक एट दिस स्टेटमेंट, इट्स नॉट व्हाट हैपन, इट्स व्हाट यू डू। देखो, एक ही एरिया में रहने वाले लोग एक ही तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। वही सूरज है जो आपके लिए है, मेरे लिए है। वही टाइम है 24 आवर्स आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स हर बंदा फेस करता है। सो एवरीथिंग हैपेंस टू एवरीवन। If we start listening to the stories from all of our class fellows, everybody is going to tell you a true fact of his or her life, जहां वो कभी जीरो पे गए होंगे लाइफ में, इमोशनली, अदरवाइज फाइनेंशियली, हर किसी को प्रॉब्लम्स हुई होंगी, हर किसी के जानने वालों को प्रॉब्लम्स हुई होंगी। बट what you do is going to ultimately give the results. रिफ्लेक्शन, दोबारा भी थोड़ा सा इसको इसके साथ रिलेट करूं। एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं, उन पे बाद में कभी किसी ने सोचने की कोशिश की है, उनसे कुछ सबक लेने की कोशिश की है, कुछ आइंदा अपनी स्ट्रेटजी, अपने हालात, अपने उसको चेंज करने की कोशिश की है? दैट इज व्हाट यू मस्ट डू। एक्सपीरियंसेस सबको होते हैं, सबकी लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सोशल, नॉन सोशल, हर किसी के पास एक्सपीरियंसेस होते हैं। बट इट इज नॉट द एक्सपीरियंस, इट हैपेंस टू एनीवन। The problem is, if you do not reflect over your experiences, you don't learn anything. So, जरा इसको देखें कि ये क्या कह रहा है। Again, reflection. The ability to process new experiences, to find their meaning, and to integrate them into one's life is the signature skill of a developed person or a leader. This is what
differentiate. Everybody has the experiences more or less the same, but the ability to process new experiences and find their meaning. क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जो सोचने वाली बात है कि उस पर सोच भी कभी सोच विचार किसी ने कभी की है कि नहीं की. If you've done that, good. That's going to make you different from the other people. If you don't do it, you'll still be there. उस experience का आपको कोई फायदा नहीं हुआ. जो last time भी सलाह से भी बात हुई और बाकी लोगों से भी, tenure versus experience. आपको experience हुआ, you never tried to gather your thoughts after that. ये क्यों हुआ है उसको कनेक्ट करने की कोशिश. अच्छा, ये रीजन हो सकते हैं, फ्यूचर में ये हो तो ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा रिपीट करना है तो फ्यूचर में क्या करना होगा. So thinking about what you have learned during the experience. उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या लेसन क्या दिया है. Make meaning and sense of things. एक्सपीरियंस हो गया बट हमने मीनिंग ही नहीं बनाया. Crystallization of that experience, which means making the idea or belief clear. The digestion of the experience, not what you eat, it's how and what you digest. For example, earning versus spending, ये तो एक एग्जांपल है. आपकी अर्निंग का तब तक आपको बेनिफिट नहीं होता जब तक आप उसकी स्पेंडिंग नहीं करते. जस्ट accumulating wealth. So reflection is an important part. Everybody go through life, everybody go through number of experiences. Not many people reflect over their experiences. Now, reflection different तरीकों से हो सकती है. Some people get the meaning by connecting the things. ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, and then they get to the core of something. Some people need to write it and then connect it. लोगों ने जर्नल रखे होते हैं अपने पास, कई लोगों ने डायरीज रखी होती हैं, कई लोगों ने फोन पे लिख रहे हैं. So some need to discuss it. Some people need to discuss it with the other person in order to understand what has happened and what is the lesson behind it. Some people simply need to apply that thing and then they're going to make some meaning out of it. अच्छा, अब हमें experiences से सिर्फ ideas नहीं मिलते. We also get clarity about ourselves. कि हम एक्चुअली क्या हैं, हमें कौन सा एक्सपीरियंस है, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना है, कैसे उस नेक्स्ट टाइम इनकरेज करना है. We also, when we reflect over our experiences, we also get to know ourselves. And developed लोगों की बहुत बड़ी निशानी होती है सेल्फ अवेयरनेस, which means कौन सी चीज उनको कब किस तरीके से हर्ट करती है. अब उनको पता ही नहीं है तो they'll keep on getting hurt. रेमेडी नहीं करेंगे उसकी. अगर उनको पता चल गया कि ये चीज है, इस तरीके से हर्ट करती है, इस तरीके से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम इस तरह अवॉइड कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग के स्टाइल्स क्या हैं वो हमें अपने खुद नहीं पता होते कि किस तरीके से हम बेहतर लर्निंग कर सकते हैं. जिस तरह हमने कहा, कुछ लोग जो हैं वो लिख के चीजों को सही तरह समझते हैं, कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में सही समझते हैं, कुछ डिस्कस करके समझते हैं, कुछ को अप्लाई करना पड़ता है. सो आपको आइडिया का तो पता चल ही रहा होता है, साथ साथ आपको अपनी हैबिट्स का भी पता चल रहा होता है. एंड जिस तरह स्ट्रेच जोन हमने कहा ना, हमें कंटिन्यूसली इसको ठीक करते रहना चाहिए. इसी तरह अपने बारे में भी चीजें पता कर करके अप्लाई करके अपने आप को डेवलपमेंट करने के प्रोसेस को भी तेज करना चाहिए. If today you're able to learn 2 new words,
Tomorrow you should be able to learn 4 new words, and after 10 years you should be able to learn the whole book within no time. So reflection is also very, very important. Then you have the context. Obviously, important. Same people, same human beings, having the same set of intelligence and genetics, when they go to a different context, one is developed, the other one is not developed. Why? Because the context is different. Learning environment, for example. You get to know many people. If your class is diverse, for example, if your society is diverse, you'll be able to learn lot many things. बट अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ठीक नहीं है तो लर्निंग पे और डेवलपमेंट पे इफेक्ट आएगा. किस तरह के पीयर्स हैं, किस तरह के फ्रेंड्स हैं आपके, किस तरह के लोग हैं जिनके पास आप टाइम गुजारते हो. And there is this concept known as who luck. आपको जिंदगी में किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट मिलता है. Especially who luck is the kind of people you meet and the kind of people you spend time with. ये इंटेंशनल भी होना चाहिए. अनइंटेंशनली तो हमें गिफ्ट्स तो मिलती ही हैं, एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस तो है ही, लेकिन ये एरिया ऑफ चॉइस भी है. जिस तरह के लोगों के साथ आप ज्यादा नेटवर्किंग, ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लर्न दोज थिंग्स नो मैटर व्हाट यू डू. आप में कुछ ना कुछ उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी. एंड अगर इसको पढ़ के मुझे आप में से थोड़ा सा समझा सके, बता सके सिंपल मीनिंग कनेक्टेड टू दिस. जी anyone from class? जी क्लास में है भी कोई के सारे सो रहे हैं? सर हैं सर. आप सर ये जो एब्रीविएशन सर जो लिखी हुई है सर, इसका सर पूछ रहे हैं सर, थोड़ा सा आवाज कर दीजिए. जी 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 इसी का पूछ रहा हूँ सर इसका सर वो अगर उर्दू में वो जो कहते हैं कि सर अगर आप किसी अतार के पास जाएंगे तो आपके पास से खुशबू आएगी, और अगर आप किसी कोयले की भट्टी में जाएंगे, चाहे आप कुछ भी ना करें, फिर भी आप काले होकर ही निकलेंगे. तो बिल्कुल ऐसे ही इसका है. मतलब ये है. बिल्कुल सही है. आपकी जो कंपनी है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बहुत मैटर करता है. आप अनकॉन्शियसली क्या क्या सीख रहे हैं. अगर इर्द गिर्द गोल्ड होगा तो जो गिरेगा वो आपका ही है. एंड विदाउट इवन नोइंग आप इसको आराम से जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. Context is also important. And at the end, again, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. डेवलपमेंट कौन आपकी करवा सकता है? डेवलपमेंट आपकी कोई भी नहीं करा सकता, आप सिर्फ खुद ही करा सकते हैं अपनी डेवलपमेंट. यू हैव टू टेक द ओनरशिप. अगर आप इसकी ओनरशिप नहीं ले रहे तो दैट मीन्स कोई भी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट की नहीं ले सकता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं इजीली, हम वेदर को
ब्लेम कर सकते हैं, हम अपने सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं, फ्रेंड्स को कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को कर सकते हैं। यू कैन ब्लेम एनीबडी, बट कोशिश ये करें कि टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें आपका नाम हो, बिकॉज एक्चुअली इट इज योर फॉल्ट। इफ यू आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप ऑफ समथिंग, then you will not be able to develop yourself। आपने खुद क्या किया इन सारी चीजों के लिए, बिकॉज उसी सर्कमस्टांसेस में ये जो सारी गवर्नमेंट, वेदर और सारे मसले हैं, ये सबके साथ हैं, सिर्फ आपके साथ नहीं है। मे बी किसी के साथ 80% है, किसी के साथ 90 है, किसी 95 है, किसी के पास 70 है, बट यू कांट से कि one person has 0 problems and you have 100 problems। So your development is not someone else's responsibility, but it helps if people around you take an interest in it। Ultimately, your personal control of your development will determine your growth। Yes, people can help you। Again, हमने देखा कि जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, but you have to take the ownership। अगर एक्सपीरियंस हुआ है and you don't reflect over it and you don't learn it and you make the same mistake again and again, then it is your fault। You're not taking it seriously। हम उसको ओन करते हैं या नहीं करते। सो डेवलपमेंट का जो ओनरशिप के साथ है ताल्लुक, दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। सो यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डेवलपमेंट। Many people say that company is not promoting them, company is not giving them enough things। What are actually you doing? सेल्फ करियर मैनेजमेंट का एलिमेंट किधर है? Forget about company, forget about circumstances। You should be responsible। Are you willing and able to develop yourself or not? So this is the question you need to ask। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो प्लीज बताएं। सर इसमें हमने लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सारा एलिमेंट कवर कर लिया है इस पूरी प्रेजेंटेशन में। नहीं, अभी हमने सिर्फ प्रोसेस पढ़ा है। ये चीजें होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करती है लोगों को, उनका प्रोसेस क्या है, वो भी पढ़ना है। ये तो लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपस में कंपैरिजन हो रहा था। ओके सर, ठीक है। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि एचआर जो है डिपार्टमेंट है उसका ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग या ग्रोथ में क्या क्या रोल क्या होता है। जी 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 ठीक जी। है। अभी हम एक्चुअली पढ़ेंगे, इफ यू कैन सी दी स्लाइड्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट करियर डेवलपमेंट, एंड मेनली हम इसकी ये स्टेजेस पढ़ेंगे। सो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि क्या एम्प्लॉय कैसे गुजर रहा होता है अपनी डेवलपमेंट फेज से इन टर्म्स ऑफ करियर्स, एंड देन वी विल गो टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोसेस जो एचआर करता है। ये उसके डेवलपमेंट के सारे फिर प्रोसेस और इसकी सारी चीजें कैसे डिस्कस होती हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक प्रोबेबली। रिटेंशन का है, सॉरी, इसके बाद रिटेंशन भी है, वो भी डेवलपमेंट का पार्ट। क्विकली जो कवर करेंगे अभी वो करियर डेवलपमेंट को करेंगे, बट दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट योर डेवलपमेंट पार्ट, career part, and the process used in employee development by the HR people। तो सर हमने शुरू में बेसिकली तो एचआर के सारे फंक्शंस को डिस्कस किया, फिर हमने मतलब रिक्रूटमेंट के एलिमेंट को हमने डिस्कस किया, फिर हमने ट्रेनिंग को डिस्कस किया, फिर हमने लर्निंग को डिस्कस किया, फिर हम कैरियर
मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जी, ठीक हो गया। एक्चुअली जो डेवलपमेंट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर रिक्रूटमेंट, वहीं से आप स्पॉट अच्छा। कर लेते हैं ये बंदा है, कैसा बंदा रखना है, कैसा नहीं रखना, क्या है। एंड देन ट्रेनिंग तो इसका बहुत मेजर पार्ट है ना डेवलपमेंट का। एंड राइट सर। देन वी डिस्कस्ड कि डेवलपमेंट एक्चुअली होती क्या है, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसकी करियर वाइज स्टेजेस कौन सी हैं। एंड देन वी विल डिस्कस कि कंपनी में जब डेवलप किया जा रहा होता है, लोगों को प्रमोट किया जा रहा होता है, किन बेसिस पे एंड किन मेथड से किया जा रहा होता है। एंड देन एट द एंड इंशाल्लाह वी विल स्टडी अबाउट उन डेवलप्ड लोगों को रिटेन कैसे करना है और कैसे देखना है कि उनकी रिटेंशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। सो सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। प्लीज करें। सर ये अभी हमने जो ऑनरशिप वाली बात लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये डेवलपमेंट इज सेल्फ कैरियर डेवलपमेंट की बात है। जी, तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या एचआर के हवाले से अगर हम देखें तो क्या वो सिर्फ ट्रेनिंग तक रिस्पॉन्सिबल हैं, आगे डेवलपमेंट के लिए एचआर डिपार्टमेंट जो हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के तो फिर एचआर के लोग तो और ज्यादा जाके कहेंगे ये तो मतलब है कि एम्प्लॉइज का अपना इंटायरली अपनी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस ये नहीं बारे है। में मैं आपका क्या ख्याल है? ओके, इसमें देखो डेवलपमेंट एचआर का ही काम है, बट किसको डेवलप करना है? एम्प्लॉयज को डेवलप करना है ना। अगर आपको ये बात पता होगी कि जो बंदा ओनरशिप नहीं लेता किसी चीज की, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की, वो डेवलप नहीं हो सकता, तो एचआर विल मेक श्योर कि ऐसे लोगों को डेवलप करे जो ओनरशिप लें। बिल्कुल सही सर। ठीक है। अगर उसको ये नहीं पता होगा कि ट्रेनिंग कैसे कंडक्ट करानी है, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग टूरिस्ट को नहीं भेजना, रेडी ट्रेनर्स को भेजना है, तो वो तो ट्रेनिंग नहीं करवा सकेगा। अगर उसको ये नहीं पता होगा कि एक्सपीरियंसेस के बाद रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, आके लोग सोचें, उसको अप्लाई करेंगे तो उनको फायदा होगा, तो फिर आप एचआर डिपार्टमेंट करा ही नहीं सकता ना। सर बिल्कुल सही है, ये क्लियर होगी बात। सर रिफ्लेक्शन पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है जी जी। मुझे कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इज के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद जो एफिशिएंसी है या परफॉर्मेंस है उसके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आनी चाहिए नहीं या नहीं 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 पर्सनालिटी के अंदर नजर आनी चाहिए? नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्शन की टर्म जो है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सोच विचार। यहां जो रिफ्लेक्शन हम जिस टर्म में यूज कर रहे हैं ना, ये है सोच विचार। ये वो ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं है कि कोई चीज किसी में नजर आ रही है। आप सोचते ही नहीं चीजों को। मसलन हम बहुत दफा बाइबल में, कुरान में कुछ चीज पढ़ते हैं, या कोई कोई ऐसी फ्रेज सुनते हैं, सुन के हम उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देते हैं। क्या हमने उसको प्रोसेस किया, दिमाग में रिफ्लेक्ट किया उस पे ऐसे होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्या है एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको बाद में कभी रिफ्लेक्ट किया कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज अच्छी की तो अच्छी रही। फॉर एग्जाम्पल, हम सारी जिंदगी अपनी पर्सनल शॉपिंग करते रहते हैं, जूते कपड़े खरीदते रहते हैं। अगेन वी मेक मिस्टेक बिकॉज हम पुराने एक्सपीरियंसेस से कई दफा सीखते ही नहीं। सो इसी तरह डेवलपमेंट भी, जिसको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या वो उन एक्सपीरियंस पे बाद में कभी सोच विचार करता है? तो रिफ्लेक्शन इज नॉट वो वाली रिफ्लेक्शन, इट इज डू यू थिंक अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस, डू यू रिफ्लेक्ट ओवर देम। लास्ट टाइम इफ यू मेड अ मिस्टेक, चले मैं आपको डेवलपमेंट का एक अपना छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। बैक अबाउट 9-10 years ago, मिड टर्म पेपर चेक किया मैंने, एंड मिड टर्म पेपर चेक किया, एक बच्चे का एक क्वेश्चन मिसिंग था, उसने नहीं किया हुआ था अटेम्प्ट। मैंने बच्चों को एग्जाम दे दिए चेक करने के लिए। उस बच्चे ने जल्दी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, पैराग्राफ बिल्कुल सही लिख के, मिलती जुलती पेंसिल के साथ,
वो मेरे पास ले आया और ला के उसने मुझे कहा कि सर ये आपने क्वेश्चन चेक नहीं किया। पहले तो मैंने सोचा कि हाँ चेक रह गया होगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं केयरफुली चेक करता हूँ, एटलीस्ट मुझे ये पता होता है कितने क्वेश्चंस किए हैं कितने नहीं। तो मैंने उसे कहा ये तो नहीं पॉसिबल। खैर मैंने ज्यादा ध्यान किया, ज्यादा गौर किया, तो मुझे लगा कि अभी अभी ताजा ताजा लिखा हुआ है, थोड़ा सा पेंसिल का फर्क है, कलर का फर्क है। बट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब मैं पेपर चेक करता हूं तो आई मेक श्योर कि खाली जितनी भी जगह होती है उसको मैं खुद पेंसिल से, रेड पेंसिल से कैंसिल करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ये रिपीट ना हो चीज। अगर उसको मैं वही सही करके गलत करके जो भी करके आगे निकल जाता, इस पे कोई करेक्टिव एक्शन ना लेता, तो आई माइट हैव चांसेस कि मैं दोबारा ये लाइफ में फेस करूं चीजें। सो एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। उन एक्सपीरियंस के बाद आपने कितना रिफ्लेक्ट किया, कितना सॉल्व किया उनको, एंड कैसे उन्होंने आपको लाइफ में हेल्प किया, दैट इज रिफ्लेक्शन। सोच विचार उस पर लाजमी है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके। उस बच्चे को सर फिर नंबर दिए या ना दिए? वो तो लहरा कहानी है ना। उस बच्चे को एक्चुअली मैंने उससे पूछ लिया कि उसने क्या किया है, और मैंने कहा अगर ठीक तरीके से तुम मुझे बता दोगे तो फिर मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। तो उसने बता दिया कि मैंने खुद अभी लिखा है बैठ के, तो आप मुझे नंबर ना दें। एक्चुअली उसका हल ये था कि मैं उसको फोर्जरी में या फ्रॉड में या इस तरह की चीज में करके उसको शायद F ग्रेड देता, लेकिन फिर वो नहीं हुआ, बिकॉज वो मान गया। उसने कहा जी मैंने अभी लिखा है, वो मेरे नंबर कम थे तो मैंने ये वो सोच रहा था और ऐसे वैसे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, खैर, बिकॉज मेरी भी उसमें पार्शली समझ लो कि मिस्टेक थी, आई शुड हैव मार्क्ड इट क्रॉस्ड। बट बात यह है कि एक्सपीरियंसेस हम सबको होते हैं, इवन नॉट एवरीबडी। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा हूँ, एक चीज से मैंने सीख लिया, हो सकता है मल्टीपल चीजों से मैंने ना सीखा हो। सो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक हो गया सर। ओके, करियर हमने डिफाइन कर लिया हुआ शुरू में, द सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस हेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। बहुत शुरू में हमने ये पहली दूसरी क्लास में इसको डिफाइन कर लिया था। पहले इट यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वही लोगों को प्रमोट करते थे, जिसको दिल करते थे प्रमोट कर देते थे, जिसको दिल करते थे नहीं प्रमोट करते थे। लेकिन अभी अगर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर आप कुछ सीख जाते हैं, कर जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, करियर पाथ इज क्लियर, सो यू कैन मेक योर करियर बेटर, अपने ऊपर डिपेंड करते हुए, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए। ये भी किसी हद तक हम कर चुके हैं। इसको एक अगर क्विक रीड कर लें कि करियर मैनेजमेंट के क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इंश्योर नीडेड टैलेंट इज अवेलेबल, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इंप्रूव होती है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड पीपल। जब आप लोगों को प्रमोट करते रहते हैं, दे स्टे विद यू। इंश्योर दैट माइनॉरिटीज एंड वुमेन गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, बिकॉज सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रिड्यूसेस एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था कि एक टाइम आता है आपका जो लर्निंग है वो ड्रॉप होने लग जाती है और प्लेटोड होने लग जाती है। तो उसमें जब आप उस बंदे को प्रमोट करते हो तो ही और शी लर्न्स न्यू थिंग्स, एंड देन प्रमोट करते हो तो नई चीजें। सो दिस इज हाउ उसकी फ्रस्ट्रेशन नहीं आती, नई नई चीजें सीखता रहता है। जब डिफरेंट लोग प्रमोट होकर डिफरेंट पोजीशंस पे पहुंचते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑब्वियसली बढ़ती है, बिकॉज नाउ डिफरेंट पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्लेसेस टू परफॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस। एंड ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अच्छी होती है, बिकॉज वो कहते हैं लोगों को प्रमोट करते हैं, इनके अपने पास ही लोग काफी टाइम गुजार देते हैं। ये भी हमने बात की हुई है, हाउ यू मेजर करियर। एक्सटर्नल करियर इज मेजर्ड बाय द पीपल। किन चीजों से? प्रोग्रेशन ऑफ द हायरार्की। एग्जाम्पल, वो कहते हैं 3 साल में ये प्रमोट हो गया, वो कहते नहीं 1 साल में प्रमोट हो गया। टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन,
किस तरह की जॉब करता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इसको 8 साल 10 साल 15 साल हो गए, एंड हाउ मच मनी दैट पर्सन इज मेकिंग, इनकम। ये एक्सटर्नल करियर मेजरमेंट के तरीके हैं, ये हमने शुरू में डिस्कस किए थे। बट इंटरनल करियर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द मीनिंगफुलनेस ऑफ one's work and achievement of personal goals. What you wanted to be and what have you become is going to give you your internal career satisfaction. Okay. ये स्लाइड हमने मेनली जो है ना इसको कवर करना है। These are the traditional career stages. आपको ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए बिकॉज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किस एज के हिस्से में कौन सी चीजें पॉसिबल हैं। वी कांट से कि ये जो एज ब्रैकेट्स हैं दे आर द सेम फॉर एवरीवन। ये बिकॉज वेस्टर्न कल्चर का एक मॉडल है, हम पे ये फिट तो होता है, बट स्टिल हो सकता है हमारी एज में और उनकी एज के जो ब्रैकेट्स हैं उनमें को थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता हो, बट दिस इज व्हाट पीपल एक्चुअली गो थ्रू। सो द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज, इसको पहले समझ लें कि ये क्या चीज है, हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट। दिस इज एज, 5 years, 75 years. This is performance. ये परफॉर्मेंस हाई है और ये लो है, लो परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस। ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है कि किस एज में किस करियर स्टेज में बंदे के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, so the first stage is the exploration stage. It starts from about 5 की एज से, इनफैक्ट इससे भी बहुत पहले, the moment you're born, and it goes up to 25. Again मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ये एज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फर्क हो, बट we are just taking an example. इस एज में आप क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क, बेसिक स्कूलिंग टू स्टार्ट ऑफ वर्क की ट्रांजिशन चल रही होती है। ओके, 25 to 35 is your establishment stage, getting the first job and being accepted or rejected or not accepted. 35 to 50 is known as the mid-career stage. इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं वो भी हम देखते हैं। 50 to 70 is the late career, and then after 70 most of the times it's a declining stage. Again ages का difference हो सकता है। Now what is happening in the exploration stage? Exploration stage में it includes school and early work, for example internship. इसमें आप कर क्या रहे होते हैं, you're trying different fields. आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। You are actually identifying your talent here, discovering likes and dislikes, very important, or maybe being forced towards likes and dislikes.
Then you are forming attitude towards work and social relationship patterns. यहाँ आपकी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत नजर आना शुरू हो जाती है। यहाँ आपको कुछ समझ आ जाती है कि आप किस तरफ शायद जा रहे हैं। एंड यू आर ट्राइंग डिफरेंट फील्ड, जो हमने पहले भी बात की थी, यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। नाउ हियर your performance can be anything, maybe your grades, your marks or anything else। तो आपकी कुछ एक लेवल की परफॉर्मेंस होती है। देन जैसे ही आपको पहली जॉब आपकी मिलती है तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस गोज अप। अब ये भी हो सकता है कि वो ऐसे जाए, ये भी हो सकता है वो ऐसे जाए, ये भी हो सकता है वो कुछ इस तरीके से जा रही हो या और ही ज्यादा इस तरीके से जा रही हो, बट यू आर डूइंग समथिंग। आप वर्क पे कुछ तो काम कर रहे हो, तो योर परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। बट एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे क्या होता है, परफॉर्मेंस तो आपकी जा रही है। गेटिंग योर फर्स्ट जॉब, इसमें क्या है, एस्टैब्लिशमेंट स्टेज है। यू एक्चुअली सर्च फॉर वर्क, यू गेट अ न्यू जॉब, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, getting the evidences of success and failure। एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में आपको शुरू के टाइम में ही पता, ज्यादातर इफ यू आर फोकस्ड अबाउट इट, आपको सक्सेसेस नजर आना शुरू हो जाती हैं। बट समटाइम्स आप और नैरो डाउन करते रहते हो अपने आप को, कुछ आपको फेलियर्स भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, या हो सकता है कंप्लीटली फेलियर या कंप्लीटली सक्सेस भी नजर आना शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में इट इज फर्स्ट जॉब, getting the evidences of success and failure, and it takes time and energy to find your niche। It's not easy कि जो नौकरी मिल गई बस चुप करके करते रहे। It takes time। पहली बात, it doesn't happen within days, it takes a few months to at least get to know things, and then it takes a lot of energy and time to find your niche। देखो ये स्टेज जो है, it is going up to 10 years, 25 to 35। So in the 10 years, you're getting some successes and failure in the first 5 years, and find a niche। उसमें से भी niche find करनी होती है। And सबसे important चीज इस पूरी स्लाइड की, actually this is the time to make your mark। अगर आपकी इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में एटलीस्ट 35 इयर्स तक भी आपको कोई नहीं जानता, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने ये चीज मिस कर दी है। यू हैवंट मेड योर मार्क येट। So by the time you're 35, you need to make your niche and you need to set your mark। देखो एक चीज मैं आपको दोबारा बता दूं, इट इज अ ट्रेडिशनल करियर स्टेज। आजकल थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन है इसमें, sometimes you switch at the age of 35 or 40, but traditionally it happened to maximum people। It is your time to make your mark। Then comes the mid career। तो स्विच करने से आपका मतलब जॉब स्विच करना या प्रोफेशन स्विच करना है? बिकॉज क्योंकि अगर इस कैरियर पाथ में हम देखें, बेशक आप जॉब स्विच कर जाए, मगर वो तो ये बताना नहीं चाह रहा कि अगर आप चाहे जिस मर्जी जॉब में हो, मगर आपका ग्राफ एटलीस्ट इस तरह अपवर्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फाइनेंशियली भी और आपकी जो जिसे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले एक्चुअली यही होता था, ट्रेडिशनली तो यही होता था कि आप जॉब स्विच कर जाते थे मैक्सिमम।
बल्कि ज्यादातर स्टेबल करियर्स की तरफ लोग जाते थे। गवर्नमेंट जॉब हो बस, जिसमें चले गए, सारी जिंदगी उसमें गुजार दी। मेरा अभी स्विच कहने का मकसद ये था कि यस, many people even switch professions completely, one industry to another industry, complete switch, because यहाँ हो सकता है कि उनको सक्सेस भी मिली हो, still they switch. Why? Because they think कि यहाँ वो अगर 80% perform कर रहे हैं, there is some place they can perform 100%. There is some industry, some new skill जिसमें वो 100% perform कर सकते हैं. This is possible आजकल के टाइम में, बट ट्रेडिशनली एंड बहुत सारे लोगों के साथ हमारे साथ ऐसे ही होता है। देखो, अब पहले तो मैंने कहा स्विचिंग इज पॉसिबल, लेकिन अब मैं ये आर्गुमेंट देने लगा हूं कि स्विचिंग इज नॉट पॉसिबल। हम में से हम जितने भी हैं क्लास में लोग, मैं इंक्लूडिंग, क्या हम अभी एमबीबीएस कर सकते हैं? कैन वी, इवन इफ यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड एट दिस पॉइंट, एमबीबीएस करना और डॉक्टरी में आना एंड मेडिसिन में जाना मुश्किल है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अबाउट 95% इम्पॉसिबल। हो सकता है कोई ऐसा हो जो कहे नहीं मैं दोबारा एफएससी करता हूँ, या इसी एफएससी पे कहीं बाहर से जाके करके आता हूँ, मेडिसिन 5 साल लगाता हूँ, बाय द टाइम यूर 40, 45, 35, देन यूर टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड ये वो, मे बी, बट सम थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज। सम थिंग्स आर नॉट पॉसिबल or they become very difficult, but at the same time हो सकता है कि इस एज पे जाके, 50 की एज पे जाके आपको कहीं एक ड्रामा में एक्टिंग या मूवी में एक्टिंग करने का मौका मिला एंड आप बड़े अच्छे एक्टर बन गए। सो देयर आर सम थिंग्स और सम यू कैन से करियर्स जिसमें शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, ज्यादातर में पॉसिबल नहीं होती। Many people, maybe because of वो likeness dislikeness, वो मिड करियर में जाके भी अपना करियर चेंज कर लेते हैं, बट ट्रेडिशनली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मेनी पीपल, एंड अभी भी ज्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। दिस इज द टाइम एक्चुअली, ऑल्सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली, ये है वो हमारी जो इनटू द जॉब ट्रेनिंग है ना, इनटू द जॉब ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। स्कूल मैटर्स, कॉलेज मैटर्स, यूनिवर्सिटी मैटर्स, बट एट द सेम टाइम व्हाट you did in school, what you did in college, what you did in university, that all constitute your getting into your first job. And here again you need to make your mark and niche select कर लें। Now यहां तक तो आपकी परफॉर्मेंस किसी ना किसी तरीके से बेहतर जा ही रही होती है, बेहतर ही हो रही होती है। Here you have 3 possibilities, या तो उसी तरह आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाती रहेगी, या आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी पिछले सालों से। इंक्रीज परफॉर्मेंस, डिक्रीज परफॉर्मेंस, एंड इसको कहते हैं प्लेटोड। प्लेटोड कर गए आप। अब इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वी कैन डिस्कस अ फ्यू। फॉर एग्जांपल, आपकी मर्जी की जॉब थी एंड आपका उसमें टैलेंट था, एंड कंपनी भी अच्छी थी, एनवायरनमेंट भी अच्छा था, प्रमोट करने वाले लोग भी थे, यू गो लाइक दिस। चीजें ठीक है, कुछ ज्यादा चैलेंज नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी किसी हद तक ठीक है, तो प्लेटोड आप कहते हैं यार गुजारा करो, बस इतना काम करो कि तनख्वाह ज्यादा लगे, तो आप प्लेटोड हो जाते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर और कोई रीजंस हैं, कोई इलनेस है, कोई अदर थिंग्स हैं, या आपका टैलेंट नहीं था उसमें जिसमें आप आ गए हो, या कोई और मसाइल है, तो पॉसिबिलिटी इसकी आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाएगी। इस पे अभी बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मिड करियर पे।
मिड करियर में क्या है? Challenged to remain productive at workplace. Employee may continue to grow, plateaued, stay competent, but not ambition. No ambition. Or your performance can deteriorate. कम भी हो सकती है. But whatever you're doing, you may survive till the age of 50. May survive. Depend करता है कि ये तो बहुत अच्छा है ना. This is good. It can also go like this. It can also go like this. It can also go like this. So obviously this one is better, less better, less better, and less better. It can also go like this and this, or maybe this. तो डिपेंड करता है आप कितना टाइम सर्वाइव करेंगे. But then you are in this late career. Late career में you are considered as an elder statesperson. अब इस स्टेज पे क्या हो रहा होता है? Successful elder statesperson can enjoy being respected for their judgments. People start listening to you. Good resource for teaching others or teaching juniors. Good mentor अगर वो successful है तो. But those who have declined may experience job insecurity. जिन्होंने पेस अप नहीं रखा अपने आप को, वो जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं. And plateauing is expected. Reason क्या है? And this is very important reason. Life of the job increases in importance. So late career में सर ये जो आपने विल परफॉर्म इंक्रीज और बिगन टू डिक्लाइन, जी ये थोड़ा सा सर मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज ये थोड़ा किसी एग्जांपल से समझाते हैं कि ये किस तरह के लोग होते हैं, जो आपने ग्रीन करके बताया था कि एकदम ये नीचे आ सकते हैं. ये ना सर जी, यहाँ से नीचे आने वाली बात नीचे समझ नहीं आई. जी नीचे आने वाली बात, हो सकता है कि उस बंदे को ये जॉब अच्छी ना लगती हो, या वो इसमें स्किल्ड हो ही ना, या उसका टैलेंट ना हो, या वो इतनी ज्यादा सिक्योर जॉब में चला गया है कि उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जॉब सरवाइव होती रहेगी. तो फिर उसकी परफॉर्मेंस वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है आहिस्ता आहिस्ता. मगर सर वो फिर अगर स्टैग्नेंट जॉब में तो डिक्लाइन तो नहीं करेगा ना, वो तो बेसिकली स्टैग्नेंट रहेगा. नहीं, उसकी जॉब स्टैग्नेंट रहेगी कि जॉब उसके पास है, जॉब है, बट वो काम या परफॉर्मेंस कितनी दे रहा है, वो जाके बैठा तो रहता है, फिर उसको सैलरी कॉम्पनसेशन भी मिल रही है, वो सारी चीजें हैं, जॉब उसकी चल रही है, बट वो काम करता है कि नहीं करता, अपने आप को डेवलप फर्दर करता है कि नहीं करता, वो नहीं करता. वो बल्कि जितना पहले काम कर रहा था उससे भी काम कर देता. दिस इज पॉसिबल. तो सर इसका बेसिकली डॉटेड से हम ये दिखाना है, मगर से फिर ऊपर वाली डॉटेड क्या शो कर रही है? ऊपर वाली लाइन तो फिर वो होनी चाहिए, स्टैग्नेंट लाइन होनी चाहिए. नहीं नहीं, ऊपर वाली लाइन ये शो कर रही है कि वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता जा रहा है. पहले वो इतना परफॉर्म कर रहा था इस एज में, अब वो इतना परफॉर्म कर गया है, उसने इतनी इंप्रूवमेंट की है, आगे मजीद इंप्रूवमेंट करने के चांसेस हैं, बहुत ऊपर जा सकता है. इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो रही है, इसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है. तो सही डॉटेड में क्यों है ऊपर वाला? डॉटेड में एक्चुअली ये है कि
दोनों डॉटेड में है ना, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों। नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब नीचे वाला तो डॉटेड में चले हो सकता है, मगर जो ऊपर वाला बंदा है अगर वो बेसिकली ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तो फिर तो उसकी लाइन स्ट्रेटली ऊपर जाएगी। हाँ ऊपर ही जा रही है। डॉटेड में इसलिए लिखा हुआ है कि ये लाइन फिक्स लाइन नहीं है, इसको ये शो किया हुआ कि फिक्स नहीं है। ओके। हाँ मतलब वो उसको डॉटेड का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है ना ये वाली, और ये पॉसिबिलिटी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेटोइंग इज एक्सपेक्टेड। कुछ मतलब लोग यहाँ हमारे आके हमारे कल्चर में सर जो वो दोज हु गॉट लाइक गवर्नमेंट जॉब्स और मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड अ ड्रीम कि यार हमें जी सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि हमें एक ये टेंशन खत्म हो जाए कि हमें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल दे वो एक्चुअली लाई इन द मिडल, ये वो स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें मतलब वो बस एक डगर पे चलना शुरू हो जाते हैं। बस वो कहते हैं जितना काम है ना, जितने पैसे मिलते हैं उतना काम करो बस। या ये बोल देखो, सारे लोग ही सपोज करें कि 17 ग्रेड पे ही बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं ना। ये सर ऑफिसर कैटेगरी से स्टार्ट होती है। हाँ जी। या लेट्स सपोज आर्म फोर्सेस का लगा लो आप, एफएससी के बाद सारे इक्वली ज्वाइन करते हैं, यस सर। सारे जनरल बन जाते हैं। नो सर। सम सारे ही कैप्टन तो नहीं रिटायर हो जाते, नो कहीं ना सर। कहीं पहुंच जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो वहीं रह जाते हैं और खत्म हो जाती है उनका करियर। तो ये वो लोग हैं सारे। आपने क्या 35 के बाद फर्दर प्रोग्रेस किया, क्या आपने बस गुजारा किया, या क्या आपने फर्दर डिक्लाइन कर दिया अपने परफॉर्मेंस को। जॉब रहना ना रहना इशू नहीं है, जॉब हो सकता है जॉब में कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा भी बैठा हो, बट कॉम्पिटेंसी वाइज, डेवलपमेंट वाइज, वो कहते हैं बस छोड़ दे, रहने दे, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं यार बस थोड़ा बहुत काम चलाई जाओ, और कुछ कहते हैं नहीं कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना। सो तो ये सर ये चीज जो यहाँ 35 इयर्स का है गेटिंग फर्स्ट जॉब में, तो यानी कि ये ग्राफ ये भी शो करता है कि 35 इयर्स तक अपने आप कैरियर में यू हैव ऑप्शंस कि आप अपनी चॉइसेस को स्ट्रीमलाइन कर सको कि जी आपने किस प्रोफेशन, मतलब 35 इयर्स तक आपके पास होता है, पॉसिबिलिटी होती है अगर आप कैरियर स्विच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी हद तक रूम होता है, किसी हद तक, बट गुड आइडिया इज कि आपकी यहाँ सिलेक्शन बेहतर हो। आइडियल ये है कि यहाँ सिलेक्शन बेहतर हो, एंड देन बाय द टाइम यू 35 आपका उस प्रोफेशन में नाम बन गया। बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्वियसली आप सीईओ तो मुश्किल है कि सारे सीईओ बन जाएं, बट पीपल नो यू। सर इसकी एक एग्जांपल है कि सर एमएसपीएम में मेरे साथ मेरा एक कोर्स कोलीग है और वो अभी बैंकिंग में, एंड ही इज क्वाइट गुड एट बैंकिंग के, अच्छी खासी पैकेज और अच्छी सैलरी पे वो है, बट ही इज थिंकिंग टू स्विच फ्रॉम बैंकिंग टू एजुकेशन। तो वो अभी इसीलिए वो मास्टर्स कर रहा है, फिर आगे उसका पीएचडी का प्लान है कि उसके बाद मैं जो हूँ मैं टीचिंग में हूँ शिफ्ट कर जाऊँ सर इस, और बिल्कुल बिटवीन 30 to 35। तो सर ये लोग अक्सर हैं इस तरह करके जो प्लान करते हैं और स्विच भी करते हैं। जी, उसमें बिल्कुल आपने एग्जांपल ठीक दी है। अब देखो थोड़ा सा जो रिस्क इन्वॉल्व है ना, फॉर एग्जांपल पीएचडी है, पीएचडी का भी फायदा आपको यहां जाके करने का उतना फायदा नहीं है जितना यहां करने का है, बिकॉज यू वॉन्ट हैव नेचुरली यू वॉन्ट हैव टाइम। आपके पास इतना सा टाइम है, हो सकता है आप इतने में बहुत कुछ कर जाएं, ये भी पॉसिबल है, बट व्हाट अबाउट दिस, लॉट ऑफ टाइम। हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो, बट जितना आप यहां से लेट होते जाते हैं उतना आप रिस्क ज्यादा इंक्रीज करते रहते हैं स्विचिंग का। सो ऐसे है, बट स्टिल मैं बताया ना सर कि इसको थोड़ा सा अगर हम अपने पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें, जी यूजुअली हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमने पहले भी से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे होता है कि बहुत से लोग तो अपने राइट प्रोफेशन में जो है वो बेसिकली एडजस्ट नहीं हो पाते शुरू में, जी एंड दे जस्ट मूव विद द फ्लो।
तो उस सूरत में बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये जो 25 से 35 वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, अगर बंदा अपने रेलेवेंट प्रोफेशन में नहीं जा रहा तो क्या ये ग्राफ तब भी ऊपर ही जाएगा? ये ग्राफ फिर बहुत डॉटेड ही लाइन जो है। शायद ऐसे जा रहा हो, ऐसे शायद, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप काम गुजारा तो चला रहे हो, तो सरवाइव कर रहे हो ना, ठीक है सर। बट शायद उसकी फिर लाइन ये ना हो, लेकिन सम पीपल हैव दिस लाइन लाइक दिस। ट्रू। इस पे फिर ये भी बहुत मैटर करता है ना कि आप अपने जिसे एचआर में कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब अब राइट एजुकेशन एंड राइट कैरियर में एडजस्ट हो गए हो। बिल्कुल। तो वो फिर बहुत से लोग अगर जिनकी अब से जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जी। जॉब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी भी जॉब के लिए वो कहते हैं जी आपका मास्टर्स होना चाहिए। ये ट्रेंड वहां पे नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं आप फलानी में जी सर मैथ होनी चाहिए। अब देखें सर सीएसएस के थ्रू बंदा पुलिस में जाता है, हालांकि पुलिस एक बड़ी मतलब टेक्निकल किस्म की जॉब है, एक डिफरेंट माइंडसेट है। कभी नहीं लिखा कि डिफेंस स्टडीज को पढ़ा होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली वो मतलब उसका नहीं होता। दैट इज व्हाई शायद गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो सारी जिंदगी उनका जो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है क्वेश्चन मार्क के नीचे इसलिए आ जाती है क्योंकि वो शायद अपनी क्वालिफिकेशन के लिहाज से अपने कैरियर को नहीं करते, वो एक परफेक्ट फिट नहीं होते, फिर वो जस्ट गो विद द फ्लो कि बस ठीक है नौकरी मिल गई और हम और यही वो काम लोग जो करते कि हैं। एग्जैक्टली जो कंपैरेटिव बेस सैलरी कंपैरेटिव एनवायरनमेंट में शुरू दिन से चले जाते हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, बेसिकली वो अपने कैरियर के साथ जब उसमें बेसिकली जंप इन करते हैं तो एवरी डे इज अ न्यू डे, और वो मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करना और फिर उसको करना और फिर अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना, जो नॉलेज को एनरिच करना, तो फिर उनका ग्राफ जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर की तरफ जा रहा होता है। बिल्कुल। इसमें एक और चीज जो ऐड में थोड़ी सी कर दूं, अगर कि यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेन कैसा करती है। फॉर एग्जाम्पल सीएसएस भी है, तो सीएसएस के बाद बिफोर योर अपॉइंटमेंट यू नीड टू गो थ्रू अ रिगरस ट्रेनिंग, जो आपको आपके प्रोफेशन की ट्रेनिंग की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यूर इन पुलिस, तो साल आपको पुलिस की ट्रेनिंग या पुलिस से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो देंगे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर सर देखिए हमने बेसिकली आपको याद होगा पहले आपने पढ़ाया था जो कि बेसिकली ऊपर स्टार्ट हो रहा था कि लर्निंग और फिर डेवलपमेंट और वो कुछ चीज़ें थी जो कि बेसिकली कुछ जी ट्रेड्स जी है जी। जो कि हाँ जी। मैं उसको एग्जैक्ट वर्ड भूल रहा हूँ, आपने कहा था ये डेवलप नहीं हो सकते ना। हाँ, व्हाट कैन बी लर्न, व्हाट कैन नॉट बी लर्न। हाँ जी। एग्जैक्टली सर, और वो फिर मतलब वो एक वो ग्राफ था, टेबल आ रहा था, ट्रायंगल बन रही थी कि एक्सपीरियंस से चीज़ें आप इंक्रीज कर सकते हैं बट नीचे जाके जो ट्रेड्स होते हैं या जेनेटिकली चीज़ें। अब सर बेसिकली यही होता है कि अब जो पुलिस और सर्विसेज की है ये मतलब एक जिसमें कहते हैं ना कि एक माइंडसेट भी है, मतलब आपको एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग चाहिए जो जिनका पैशन है, मतलब कहते हैं व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, तो एक बिल्कुल, बेसिकली एक बेस्ट फिट हो जाता है वो। ये तो तो है। अब ट्रेनिंग में बेसिकली सर आप जितना मर्जी उसको दें, मगर अगर आपके का इंटरेस्ट और ठीक है आप बड़े काबिल हैं और आपने एग्जाम पास करके बेसिकली आप उस में आ गए हैं, बिकॉज वो टॉपर्स उसी में जाते हैं। बट ये है कि उसको अब पुलिस का प्रॉब्लम ये है कि वहां पे एक खास तौर पे एक माइंडसेट भी चाहिए उस प्रोफेशन को अच्छा चलाने के लिए। ऐसे ही है। तो जो कि आप ट्रेनिंग से तो सर बेसिकली किसी में इंजेक्ट नहीं कर सकते, वो तो जेनेटिकली भी चीजें बेसिकली उसमें शामिल होती हैं। जी। अब जबकि फोर्सेज में आप देखें तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम अब मतलब प्री मेच्योर माइंड यानी मैट्रिक एफएससी के बाद आपको ले लेते हैं और वो फिर आपका पाथ वे बेसिकली वहीं पे खुद ही डिफाइन करे होते हैं। हम्म। तो मतलब है कि शायद मुझे ऐसे ऐसे फील होता है सर कि जो इसीलिए सीएसएस में मतलब मैं माइट बी 100% रॉन्ग कि जो आपको पुलिस का डिपार्टमेंट है वो जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो मतलब ऑल्दो तो वो उसमें कभी रेलेवेंट स्टडीज और नॉलेज और वो चीज़ बेसिकली जब आपके माइंडसेट और आपकी जीन्स में के साथ क्लब होके एक चीज़ निकालती तो शायद वो वहाँ पे वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा होता। इसीलिए लोग उस जाते ही उसको सरकारी कल्चर में वो इंडक्ट होते हैं और वो बस उनको लगता है यार अब तो नौकरी पक्की है और हम्म एक ऐसी जॉब है और बस वो दे स्टार्ट एंजॉयिंग, बट जबकि वहाँ वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है जो कि इनर हम्म। से डिराइव भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। सर आई बिल्कुल। होप कि मैं शायद जो अपना पॉइंट क्लियर जो नहीं कहना नहीं, चाह रहा हूँ आप आप समझ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई नॉट एवरीबडी
is the best CSP officer. एग्जैक्टली सर, ठीक है ना, इंडक्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट वेरी बिल्कुल फ्यू सर, आर वेल नोन. तो हो सकता है कि वहां कुछ प्लेटोड वाले हों, कुछ ये हों, और कुछ जो हैं वो ये लोग हों. ट्रू सर, एक्चुअली ऐसा ही है बिल्कुल। आपको बड़ा लकी भी होना पड़ता है एफर्ट्स के साथ, इन सारी चीजों के साथ, in order to be at the right place, because it is something जो आप सारी लाइफ गैम्बल करते रहते हो, अवेलेबल ऑप्शंस ही आप एक्सप्लोर करते रहते हो, एंड इफ यू मैच विद वन ऑफ योर अवेलेबल ऑप्शंस तो बहुत अच्छी बात है. तो ये चीजें हैं, सही कह रहे हो आप, ये मैटर करता है. अब सर इसमें वो भी एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपने एक दफा पढ़ाया था कि आपकी यू नीड टू वर्क ऑन योर चॉइसेस वाला एक कॉन्सेप्ट था ना हाँ सर, हाँ, यू आर गुड एट, मतलब वो एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस एंड चॉइसेस. एग्जैक्टली सर। तो अब सर मतलब एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस पे हमने उस दिन बड़ा खूबसूरत एलिमेंट एक अंडरस्टैंड किया था कि एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस पे तो हमने कभी फोकस ही नहीं किया, मतलब शुरू से ही, कि हमारे स्कूल लेवल पे या हमारा सिस्टम भी ऐसा नहीं है जो कि हमारी एरिया ऑफ गिफ्टेडनेस को बेसिकली सामने लेके आए। हाँ, ये तो और है. बिल्कुल सर, और वो जो बेसिकली जो हमारी वीकनेसेस होती हैं मतलब वो हम उन्हीं पे ओवरकम करते रहते हैं, बट इवेंचुअली जो हमारी गिफ्टेडनेस वाला एलिमेंट है वो उस तरह पॉलिश ही नहीं हो पाता, बिकॉज आपको बेसिकली फाइन चीज को डेवलप करने के लिए उस पर मेहनत तो करनी पड़ती है, रॉ के ऊपर मेहनत, मेहनत करेंगे तो कोई चीज फाइन चीज सामने बिल्कुल आएगी। बिल्कुल ऐसी है. वही 24 आवर्स के अंदर हम अपनी वीकनेसेस को ही ठीक करते रहते हैं, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं गिफ्टेडनेस वाली उनको हम पॉलिश नहीं कर पाते, तो इवेंचुअली एग्जैक्टली हम सर, एवरेज रह जाते हैं इवेंचुअली. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो ये मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत लक है कि आपकी प्रोफेशन आपके पैशन के साथ मैच हो जाए. एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. एंड देन योर डिक्लाइन, लास्ट स्टेज, जो एक्चुअली क्या करती है, may be the most difficult for those who were most successful at their early stages. जिन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया होता है और एकदम उनका जब डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, उनके सोशल कैपिटल में, उनकी रिकग्निशन में, उनकी इनकम में, for them this is a very difficult stage. For example, nobody is listening to you at home. Nobody is there to listen to you at work, and you don't have that much social influence. So it becomes very difficult for you. Frustration बहुत ज़्यादा हो जाती है. But today's longer lifespans and legal protections for older workers open new possibilities for continued work, contribution, either paid or volunteer. So late जो stage है career की, that is difficult, especially कुछ लोग तो यहाँ आके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि thank God work is over. बट जिन्होंने ये चीज देखी होती है, दे मिस द वर्क. ये यहाँ एकदम ये डिक्लाइन देखना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है. सो इसलिए बट आजकल ये है कि आजकल डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं. बहुत सारी कंट्रीज में एक्सटेंशन मिल जाती हैं, आप रेगुलर जॉब से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे, टाइम बेस्ड जॉब पे शिफ्ट हो सकते हैं. But still, you have to eventually face this thing. आपको preparing to retirement कह रहे हैं, although sometimes retirement starts from here. तो obviously ये चीजें इस तरह ही होना शुरू हो जाती हैं. सर एक आपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि जनरेशन वाइज वो जो सर डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई थी सर, बेबी बूमर्स और जी सर जी. अभी हम किस में फॉल करते हैं सर? अभी डिपेंड करता है कि आपकी, आई थिंक एक्स में, वाई में होंगे हम तो लोग, सर वाई में. बेसिकली अभी मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम जैसे हमारे पेरेंट्स मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में थे, मगर जिस तरह हम लोग जब 60 इयर्स में अगर जिंदा रहे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे तो शायद गवर्नमेंट का अभी तो बहुत कम हो गया कॉन्सेप्ट,
जी तो मतलब वो काफी ऑल टुगेदर ये शायद उस तरह ग्राफ भी चेंज हो जाए, बिकॉज अब ज्यादातर जो लोग 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, अब जो जी। प्राइवेट जॉब्स का कॉन्सेप्ट है हम्म। उस पे अब आप देखें बहुत से कॉर्पोरेट कल्चर में आपको यंग लोग ही नजर आते हैं, लोग एक्सेप्टेंस भी नहीं है बूढ़े लोगों की, ओल्ड एज हम्म। लोगों की, सॉरी। तो हम्म। अब हमारी जनरेशन जब आगे जाएगी तो ये एक डिफरेंट ही एक्सपेरिमेंट होगा कि क्या ज्यादा एजेड लोग उस कल्चर में को अडॉप्ट कर पाएंगे, या फिर वो कल्चर उसी तरह कंटिन्यू रहेगा कि नए लोग टेक ओवर करें। मतलब आजकल के कल्चर में ये एक यंग यंग सीईओज हैं, जबकि हम्म। पहले डिफरेंट था कि जितना एजेड होगा उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। तो बिल्कुल। आई डोंट नो इसका बेसिकली से क्या इवेंचुअली एंड होगा, क्या हम लोग 60s पे 50 60s पे बेसिकली रिटायर हो जाएंगे, या फिर हम लोग भी इसी तरह 75 या 80 तक आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। बिकॉज अब रिटायरमेंट एज तो गवर्नमेंट जॉब के लिए है ना, मगर जी प्राइवेट लोगों को तो कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। तो ये एक शिफ्ट मुझे लगता है सर आएगा, आई डोंट नो किस तरह का शिफ्ट होगा ये। सर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको इसका एक ही जवाब दूंगा। जो बंदे अब से लेके कंटिन्यूसली अपनी डेवलपमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यूसली एवरी डे, वो 60 पे भी जाके दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल, इनफैक्ट मोर यूजफुल देन एनीवन। लेकिन अगर, अच्छा, आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपने डेली अपने आप को डेवलप करना है, लेकिन अभी इट इज द वे थिंग्स आर। अगर आप डेवलप नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से कि नहीं मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे नई एप्लीकेशन सीखना अच्छा नहीं लगता, डोंट वरी, कुछ टाइम के बाद दे विल बी यूजलेस, मे बी। जो कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप करते रहेंगे, वो बूढ़े होने का कोई चांस नहीं है, वो बहुत यूजफुल रहेंगे। प्रॉब्लम अगेन क्या है, अगर आपने नए तरीके नहीं सीखने, तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शंस है ना। रिक्वायर्ड चीजें सीखते रहो, प्लेटोड रहो, दूसरे लोगों से आगे निकलते रहो, वेरी गुड, या फिर बैठ जाओ चुप करके। तो वी हैव ऑल दीज ऑप्शंस, ये मसला नहीं है। जनरेशन गैप रहेगा हमेशा, ऑब्वियसली हमारे बाद के आने वाली जनरेशन और हमसे ज्यादा बेहतर होगी, बट डेवलप जो करता रहता है अपने आप को, उसको कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सर मैं जो एग्जैक्टली कहना चाह रहा था, आपने आखिरी बात में कंक्लूड किया कि जो प्लेटो का वाला एलिमेंट है ना सर, ये जो आपकी ग्रीन लाइन अभी जा रही है, जी मतलब ये मैं कहना ही चाह रहा था कि ये जो प्लेटूड है शायद हमारी जनरेशन इसको भी इंजॉय ना कर सके। जी क्योंकि जी देखिए जी। सर, क्योंकि हाँ, सर आप, हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है, आप ये सही भी कह रहे ऑप्शन नहीं है ना सर, हैं, क्योंकि हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं। हमारे पेरेंट्स के पास वही ऑप्शन था कि गवर्नमेंट ये कम से कम ये लाइन तो चलती रहेगी सर। हाँ जी। बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम तो बेसिकली शायद 50 के बाद ही नीचे आ जाएं अगर हम अपने आप को कंपेटिटिव ना रख सके, तो बिकॉज अगर ये बिकॉज ना नोबडी विल किया, बियर अस। बिल्कुल ऐसे ही 100%। ये मैं आपको बता बात रहा कहना चाहता था। हूँ, एवरी डे आप इसको टिप, मतलब पर्टिकुलरली यही समझो कि एवरी डे, आज आपने कुछ नहीं सीखा, दैट मीन्स आपने इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर लिया है, थोड़ा और टिल्ट कर लिया, और टिल्ट कर लिया, और टिल्ट कर लिया। इफ यू लर्निंग एवरी डे, तो फिर आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस लाइन को मजीद इस तरफ लेके जा रहे हैं और ऊपर टिल्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीटली अब हमारा, अगेन, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज नॉट समथिंग दैट इज चैलेंजिंग, बिकॉज हमारे पेरेंट्स को या हमारे से पहले जनरेशन को एक डेफिनेशन सीखने के लिए 10,000 कदम जाना पड़ता होगा। हम दुनिया की कोई स्किल भी घर बैठे सीख सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठ के सीख सकते हैं, दुनिया की कोई भी स्किल। हमें अगर चैलेंज है तो साथ सपोर्ट भी बहुत है। उन लोगों को अगर चैलेंज कम था तो सपोर्ट भी कम थी। सो इसलिए इट्स द सेम फॉर एवरीवन, बट प्रॉब्लम इज कि हमें इसको कॉन्शियसली करना है, हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता इसके बगैर। पहले शायद हो जाता, अब नहीं हो सकता। Should we move on? सर आज के लिए काफी नहीं है वैसे, थोड़ा सा है तो काफी, लेकिन टाइम भी काफी है ना अभी।
सर एक दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। जी जी प्लीज करें। वैसे ये 2-3 दफा मैंने सर क्लास में भी सुना है, वैसे अब इसके अलावा भी सुना है कि गवर्नमेंट जॉब में लोगों की इंटरेस्ट कम हो गई है। हम्म सिंस आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि डेफिनेटली करें, अच्छी बात है। हर लेवल के ऊपर जब जॉब ओपनिंग होती हैं तो शायद जो लोग प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं उनको आइडिया नहीं है हम्म, कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी होती हैं हर पोस्ट पर। बिल्कुल ऐसी। नंबर वन। नंबर टू, शायद स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ड्रॉप हो गया है या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो गई हैं। एक कंपनी मरी रोड के ऊपर जिसको मैं जानता हूँ, अमेरिकन बिलिंग कंपनी है, वो सर हम्म, एफएससी या इवन मैट्रिक के ऊपर भी बिलिंग एग्जेक्टिव ले लेते थे, ट्रेन करते थे फॉर 21 डेज बिल्कुल और सही। देन वो जॉब्स दे देते थे, एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब। अब हम्म, वो मास्टर्स, कंफर्म मास्टर्स से नीचे जो है वो दे आर नॉट हायरिंग, और स्ट्रेट अवे अगर वो ऑफिसर लेवल पे ले रहे हैं तो वो लम्स और आईबीए और यहाँ से ग्रेजुएट्स उठा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसी। रिक्वायरमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस की वो तो डे बाय डे बढ़ रही हैं। दूसरी जहाँ तक सर बात हो रही है ये परफॉर्मेंस कर्व की जो हम बात अभी डिस्कस कर रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम्म, इसमें मेजर रोल जो मैंने 5-7 साल के अपने करियर में देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और मैनेजमेंट इज द मेन रीजन कि लोग नहीं परफॉर्म करते अच्छा बेसिकली। बिल्कुल सही बात। जो लोग जॉब सिक्योरिटी, हमारे यहाँ तो यही ट्रेंड है कि मोर जॉब सिक्योरिटी इज इक्वल टू लेस परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस। जितना जो बिल्कुल सिक्योर होता जाता है परफॉर्मेंस उसकी कम होती जाती है, लेकिन ये भी अपॉर्चुनिटी भी ऑर्गेनाइजेशन या उसका कल्चर या मैनेजमेंट ही दे रही होती है कि वो बिल्कुल सही बात। एक सिक्योर जॉब वाले को भी बिल्कुल वो छोड़ देते हैं, तो वो इस तरह से। वो काम नहीं करते, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक्चुअली अवेलेबिलिटी का भी तो इशू है ना। असल में हम जिस उससे बात कर रहे थे कि मैंने एक आध दफा बात की है गवर्नमेंट जॉब्स की इंटरेस्ट की। पहले अवेलेबिलिटी भी तो नहीं थी ना, काम की ऑप्शंस भी तो नहीं थे। अब ऑप्शंस हैं तो लोग डिवाइड हो जाते हैं। उधर अप्लाई, डेफिनेटली वी कांट से कि उनकी इंपॉर्टेंस इस तरह कम हुई है कि अगर जॉब मिल रही हो तो बंदा क्या नहीं मैंने नहीं करनी, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक आवर्स एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जॉब का होना बड़ी बात है। तो ये तो सेकंड बात है कि जॉब को आप रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई ऐसी चीज। तो स्टिल ऑब्वियसली वो चीजें हैं, बट सिस्टम्स की वजह से, कुछ लोगों की खुद की वजह से, कल्चर की वजह से फिर कई दफा मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लोग नहीं परफॉर्म उस तरह कर रहे होते जिस तरह करना चाहिए। ओके, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमारे लिए, अपने लिए क्या टिप्स हैं या चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। पहली बात, नो योरसेल्फ। आप क्या है कि कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपने क्या करना है और कैसे काम करना है। मैनेज योर रेपुटेशन। शायद हमने पहले भी बात की है कि नहीं की। कैरेक्टर एंड रेपुटेशन का कोई फर्क कोई समझा सके अगर, तो हमने पहले एक दफा किया हुआ है, शायद नहीं किया तो फिर मैं अभी बताता हूँ। Anybody has any idea about the difference between reputation and character? सर रेपुटेशन मींस कि जो दूसरे लोगों की परसेप्शन है ठीक है, अबाउट गुड, समवन, बिल्कुल सही। और करेक्टर सर, इज मोर लाइक के व्हाट एक्चुअली वी आर मे बी। बिल्कुल सही। सर सो रेपो जो है वो सर एक्सटर्नल होती है और कैरेक्टर जो है सर वो इंटरनल होता है। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये हम कई दफा मिस्टेक करते हैं कि कैरेक्टर इज गुड बट समटाइम्स रेपुटेशन इज नॉट दैट गुड। ऑल्दो कुछ लोगों का कैरेक्टर ठीक नहीं होता बट रेपुटेशन ठीक होती है। बट I think both should be right, but reputation is something that gives you the advantage in your professional world. कि आपको लोग क्या समझते हैं। Then network contacts, अगेन जैसे मैंने कहा कि 35 की एज में भी अगर आपको कोई नहीं जान रहा आपकी इंडस्ट्री में या आपकी कंपनी में,
तो दैट मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको लोगों को जानना चाहिए, लोग आपको जानते हों, एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर। ये जो बात अभी हम कर रहे थे, तला भी एंड हम लोग सारे डिस्कस कर रहे थे, कीप करंट। आपको अगर आजकल की चीजें नहीं पता तो बड़ी जल्दी है कि आप शायद उससे निकल जाएंगे, उस रेस से निकल जाएंगे। सर्वाइवल का इशू नहीं है, इट इज द रेस जिसमें आप ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कीप योर ऑप्शंस ओपन। इस पे सिंपल एक टिप है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के भी जा रहे हैं, कोशिश करें लड़ाई को अवॉइड करें। इफ इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल तो फिर ये कोशिश करें कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो। मेक श्योर इफ यू वांट टू कम बैक टू द सेम प्लेस विच यू आर लीविंग, people will like you and people are going to accept you. If you get a new job, do not straightforwardly reject it. आप कह देते हैं मे बी अभी नहीं, मे बी लेटर या कुछ इस तरह की चीज, बट यू नीड टू कीप योर ऑप्शंस ऑफ जॉब, बिजनेस एंड अदर थिंग्स ओपन। देन बिल्ड एंड मेंटेन। अपने आप को कंटिन्यूसली बिल्ड भी करते रहें और उस बिल्ड करने को साथ साथ अपने मेंटेन भी करते रहें। And again, balance your specialistic and generalistic competencies. इस पे बहुत सारी लिटरेचर में एंड अदरवाइज बहस है, बट अगेन इफ यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, दैट इज द राइट अप्रोच। मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो आपको डेफिनेटली अपने एरिया में तो पता होनी चाहिए सारी चीजें, शुड बी एक्सपर्ट, but you should also have some knowledge about everything around you. And another mistake that we usually make, we do not document our achievements, especially when you get a job and your job is stable, you're doing well, आप अपनी CV अपडेट नहीं करते कभी। There are many trainings जो आपने की होंगी या वो आपको फ्यूचर में जरूरी भी होंगी, बट आपने उनको कभी CV में लिखा ही नहीं, कभी आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी CV को डॉक्यूमेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंट उसमें नहीं की चीजें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम यूजुअली इमरजेंसीज में CVs बना रहे होते हैं। तो ये भी अगेन मंथली, डेली, ईयरली आपकी CV शुड बी कंटिन्यूसली अपडेटेड, उसमें चीजें ऐड करते रहें। इट्स नॉट ओनली फॉर द जॉब, it is to sometimes give you a revision of what you've done during last years. Because अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलता जाएगी वो चीजें, कहीं लिखी होंगी, डॉक्यूमेंट हुई होंगी, तो दैट यू कैन ऐड इनटू योर प्रोफाइल। सो ये थोड़ा सा अपने करियर के लिए जो है वो आप ये चीज कर सकते हैं। सो इसको हम कर लेते हैं यहाँ खत्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। आपने मुझे